تو ہم تھوڑا سا جو ہمارا جموں کشمیر ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن اسکیم کو لے کے ہے، اس میں ہمارے چیئرمین فاروق صاحب جو ہے وہ بات کریں گے ڈیٹیلز میں، جس کی ہمارا پبلسٹی بھی ہو جائے گی. اور بلال صاحب نے کچھ باتیں اٹھائی تھی اور میں ویلکم کرتا ہوں بہت سارے لوگ. اس کے پیچھے کوئی ہے، that is we people. ہم نے اس کو مٹی میں ملایا ہے. کوئی نہیں. اچھا when we see work سب سے بڑھیا کام کرتے ہیں. رضوان صاحب بھی will be knowing me. I was working in the DC office from last 1 year and the most difficult job was assignment. جو ہمارا بیسک کام ہے. میری میٹرک ٹیچر ہے یہاں پہ. مگر کیا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ہم ہی ہیں جو آنسو کی زندگی. میں یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ کشمیر میں ہمارے پاس ایک فوبیا بن گیا ہے. کیا پاس میں ہم سے ہونی چاہیے، مگر کم از کم پہلے یہ سپرٹ تو ہونا چاہیے کہ میں کسی کے پیچھے چلوں. سبھی لوگ لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. we have to follow them. تو اس وقت جو ہماری ایک اہم تشریف ہو چکے ہیں، ہم ان کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں. اور میں سب سے پہلے یاسین صاحب سے ہمارے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ گلدستہ پیش کریں گے چیئرمین صاحب کو، اور اس کے بعد آگے کی کارروائی شروع کریں گے. اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. آج کے ہمارے مہمان خصوصی قابل احترام جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کے چیئرمین، اور جس کے لیے آج یہ پروگرام جو یہاں پہ رکھا گیا ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں، JKOPRUF کہ جموں کشمیر اولڈ پینشن ریسٹوریشن یونائٹڈ فرنٹ. اس کے لیے ہم مبارکباد اپنے چیئرمین صاحب کو دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس فرنٹ کے بھی چیئرمین ہیں. تو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو ہمارے چیئرمین صاحب کو. اور ان کے ہمراہ جو ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے جو پریزیڈنٹ محترم منتظر منیف صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے سینئر ٹریڈ یونین لیڈر اسٹیٹ الیکشن کمیشن بھی ہیں یاسین صاحب، اور اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر ہمارے حسین صاحب، اور اسٹیٹ کے جو ممبر ہمارے نصیر احمد شاہ صاحب، الطاف. واجب الاحترام جلیل القدر چیئرمین جموں کشمیر اولڈ پینشن ریسٹوریشن یونائٹڈ فرنٹ و چیئرمین جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچرز فورم جناب فاروق احمد قندری صاحب. تو بیٹھیں گے لیکچر کریں گے، یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. یہ بات میں کہتا ہوں کہ 10,000 ووٹ کروں، ایٹ لیسٹ 20,000 ووٹ کروں. پھر گورنمنٹ کو لگے گا کہ کوئی الیکشن رہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے، میں مطمئن نہیں ہوں کہ 200 ووٹر سے بھی کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ الیکٹرل رول بڑھے، زیادہ سے زیادہ الیکٹرل رول بارہمولہ میں ہو، پھر جا کے الیکشن کی آ جائے. آپ سے گزارش ہے فورم کو صاحب کو کریڈٹ نہیں دوں گا، میں کریڈٹ دوں گا ان زونل پریزیڈنٹس کو جنہوں نے گراؤنڈ میں یہ پیسے جمع. میں ان کو کریڈٹ دوں. تو میں اس منچ کے ان کو واپس نے یہی تھے. چلو ویری نائس، بہت اچھی. ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے NPS
अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप हमसे 30 साल की सर्विस लेते हो, 40 साल की सर्विस लेते हो और इसके बाद मरने के लिए हमें ओल्ड होम में छोड़ देते हो। क्या ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है? जिस मुलाजिम से आप 30 साल सर्विस लेते हो और फिर उसको पेंशन नहीं दोगे, उसको घर में जलील करोगे, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके लिए जिंदा रहने के लिए पेंशन है। और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में है, ये अमेरिका में है, ये यूके में है, ये फ्रांस में है, ये पूरे यूरोप में है। और ये जो एनपीएस या यूपीएस को लाया गया, ये सरासर मुलाजिम कुश है, मुलाजिमों के खिलाफ एक साजिश है जिसको हम इंशाल्लाह नाकाम करते रहेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमने जम्मू कश्मीर ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक कन्वोकेशन का एहतमाम किया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन ने बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की। एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि पूरे इंडिया में इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाएगा, जो 2004 में हिंदुस्तान की सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लाई जिसको एनपीएस बोलते हैं। और हमारे उस वक्त अर्स्ट वाइल स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट ने 2010 से एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया और इस स्कीम को हम सिरे से नकारते हैं। ये मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी है जो कि भारतीय सरकार ने 2004 में लागू की है। अब उन्होंने इसमें अमेंडमेंट करके यूनाइटेड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू किया गया, जिसको तमाम हिंदुस्तान के मुलाजिमों ने फिर से यकसरत मुस्तरद किया और ये डिमांड दोहराई, जैसे हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के लिए, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, हमारे ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, एमपीज के लिए, जम्मू कश्मीर के सीएम के लिए, जम्मू कश्मीर के एमएलएज के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए ओपीएस को चुना है और गरीब मुलाजमिन के लिए यूपीएस को चुना है। हम इस बात को सिरे से नकारते हैं, रद्द करते हैं और सरकार से अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर की मुंतखब सरकार से और हिंदुस्तान की जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से हम गुजारिश करते हैं कि वो जल्द जल्द ओपीएस को रेस्टोर करे। जब तक ओपीएस रेस्टोर नहीं होता है तब तक हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। हम कन्वेंशंस करते रहेंगे, डिस्कशंस, कन्वोकेशंस, और उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे प्रोटेस्ट का भी रुख जरूर करेंगे। सर, अगर हम बात करें, ये रहबर तालीम के यहाँ पे प्रोग्राम था, क्या ये सबों के लिए है या रहबर तालीम मुलाजमों के लिए? जी, आपका बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, चूँकि हमारी रियासत में, अर्स्ट वाइल रियासत में 2010 से ये लागू हुआ, तो इसमें 2010 के बाद जितने भी मुलाजमिन हैं वो सब एनपीएस में आते हैं। इसलिए आपकी बात बहुत सही है, हमें जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम में ओपीएस का डिमांड तो ऑलरेडी है, लेकिन हमने ये जो जम्मू एंड कश्मीर ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट तश्कील दी, ये हमने सारे मुलाजमिन के लिए दी, चूँकि आपको पता है कि चंद एक स्टेट्स में लागू हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। इस तरह हम चाहते हैं हम अपनी यूटी में भी, और ये एक दिन स्टेट तो बननी है, हमारे पास एक विजन है, हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया और इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे 38 डिपार्टमेंट्स में, उनकी जो इंजमने हैं जो एनपीएस में आते हैं वो हमारे साथ शोल्डर करें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम गवर्नमेंट पे ये दबाव डालें कि हम ओपीएस को रेस्टोर करें। तो अलगरज ये सब मुलाजमिन के लिए आपका अच्छा सर, अगर जो 2010 ऑफिसर्स हमारे अपने जो है क्लासमान ऑफिसर्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए तो ये ज़रूरी होना चाहिए था, तो उनको भी, हमारे यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उनके लिए नहीं है, उनको भी चाहिए था। हमारे जो बाकी बी ग्रुप के मुलाजमीन हैं, डी ग्रुप मुलाजमीन हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, सबके लिए है और उनको भी इसमें आना चाहिए। वो एनपीएस में हमारे केएस ऑफिसर साहिबान है, बल्कि आईएएस ऑफिसर भी है, वो आते हैं एनपीएस में, और इस वक्त यूपीएस है। एनपीएस का नाम चेंज करके यूनियन कैबिनेट ने अब कुछ मॉडिफिकेशंस करके यूपीएस लाया है, मगर यूपीएस भी उन डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी ज़रूरियात है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। उन हमारी रिक्वायरमेंट्स को जरूर पूरा करने के लिए सिर्फ
ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन को कायम करना है, ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करना है, यही हमारा मुतालबा है। और हमारी गुजारिश है जितने भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, KAS ऑफिसर, KPS ऑफिसर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं, जो NPS में आते हैं, UPS में आते हैं, वो भी हमारा ताउन करें ताकि हम सब के लिए लड़ रहे हैं और सब मुलाजमिन के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो मुलाजिम हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर। सर अगर हम बात करें जब कोई रिटायर होता है तो इसको ख़ानदान में अपने रिश्तेदारों में इज्जत होती है, अपने घर में, तो क्या ये नहीं हो सकता अगर कोई रिटायर अब हो जाएगा मतलब इसमें तो? मैं एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि ज़िला बारामूला के अंदर पहली बार आज एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जो ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि अंडर द बैनर ऑफ रहबर तालीम चीज़ फोरम की है। इनके चेयरमैन जो है हमारे फारूक अहमद तांत्रे की क़यादत में एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ जिसमें कम से कम सैकड़ों की तादाद में सदस्यों ने शिरकत की जो कि NPS के ज़ुमरे में आते हैं और जिनकी मांग है कि सरकार को हमारे OPS में लाने का एक प्लान कर रहे हैं हम कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, चाहे वो KS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, सबको कहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपने प्रोग्राम को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए अच्छे तरीके से काम करें। ये ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन की यूनाइटेड फ्रंट है ताकि हम अपनी बात जो है सरकार के पास ले जाएं और सरकार से इस चीज़ की डिमांड करें। आने वाला कल जो हो सकता है हमें कहीं पर भी सरकार के खिलाफ कोई हमारा प्लान है नहीं, लेकिन जब सरकार मुलाजमीन का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगी तो मैं भी हमारे इन्हीं मुलाजमीन को जो कि NPS के ज़ुमरे में आते हैं उनको सड़कों पर आना है, कि उनकी फैमिली को सड़कों पर आना है, उन्होंने अपने काम को आगे लेके चलना है ताकि उनकी डिमांड जो है वो हल हो जाएंगी वक्तन फ़वक्तन। जितनी भी उनकी मुश्किलात हैं सारे मुलाजमीन से हम गुजारिश करते हैं कि इस बैनर के तले आएँ और अपनी जायज़ मुतालबात का जो हक है वो सरकार के सामने आप बात रखें ताकि आपकी मांगे जो पूरी हो। शुक्रिया।